if when a plant, same kind of plant is grown in a particular field, that you can see here the boundary is there, and in the wall boundary, inside the wall boundary, you can see there is the same kind of plant, okay, on a large scale. Clear? So if a same kind of plant is grown in a particular field on a large scale, then it is known as crop. So this is the definition of the crops. Okay. So can you name this crop? This is a paddy crop. Okay. So this is grown in the season of raining season. Clear? So the crops which are grown during raining season, they are known as kharif crop. Okay, and after that is grown from October to March, that crop is known as rabi crops. Okay, so this is a kharif crop. It is grown in the raining season, that is from June to October. Okay, from June to October it is shown. Clear? Now there is you can see also along with the crop there is some weeds also. Okay, so what are weeds? Some unwanted plants that grow along with the crops, they are known as weeds. They are very harmful to the crops. Why they are harmful? You can see here there is a paddy crop. Okay, paddy crop. Along with that there is some unwanted plants. Clear? So you can see these are unwanted crops, and in the whole field there is a paddy crop. Clear? So why there is a need to remove these unwanted plants? Because in the same field, if they grow, there is a need of nutrition for the whole plants. Okay, weeds also needed the nutrients, and as well as our crops also needed what? That is nutrient. Okay, so there is a competition for the nutrients. Clear? Because both needed nutrients, and if there is a nutrient deficiency in our field due to the weeds, if weeds takes the nutrient, okay, that is needed by our crops, so what will happen? That our wheat or any crops that is there in the field, they will not get the proper nutrition, and because of nutrient deficiency we are not going to achieve the whole sufficient amount of crops that we are assumed. Okay, so it is needed to remove that weeds from the field. Okay, so weeds, this is a weed. Okay, अभी वीड्स को यहाँ कब निकालना होता है? हमेशा ये जो सीड्स आ जाते हैं इनके अंदर, इनसे पहले रिमूव कर देना चाहिए, क्योंकि अगर एक बार सीड आया और ये वापस हमारे फील्ड में, ठीक है, चले जाते हैं, तो इससे क्या होता है? इससे फिर न्यू प्लांट्स जनरेट हो जाते हैं. ठीक है, न्यू प्लांट्स जनरेट हो जाते हैं, इनका मतलब फिर से ये और ज्यादा से ज्यादा यहाँ से न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हो जाएगा इनको. ठीक है, तो हमारे जो प्लांट हैं, जो एक्चुअल में हमारे क्रॉप्स हैं, इनको क्या होगा? डेफिशिएंट करेगा, जिससे इनकी ग्रोथ जो है वो प्रॉपर नहीं होगी. इसलिए हमेशा इनको प्रॉपर टाइम पर रिमूव करना बहुत ही जरूरी है. इनको फ्लावरिंग के पहले हमें रिमूव कर देना चाहिए. ठीक है, ताकि ये जो है ये इनके जो सीड डेवलप ना हो और ये और ज्यादा ग्रो ना कर पाए. ठीक, सो एक क्वेश्चन है कि जो खारिफ रबी क्रॉप होते हैं उनको हमें यानी कि रेनिंग सीजन में क्यों नहीं ग्रो करना चाहिए, या उनकी ग्रोथ रेनिंग सीजन में क्यों नहीं होती है? ठीक है, क्यों नहीं होती है? क्योंकि जो खारिफ क्रॉप होते हैं उनकी जरूरत होती है ज्यादा से ज्यादा वाटर की. ठीक है, अभी भी आप यहाँ देख सकते हैं देयर इज अ वाटर. ठीक है, सो इनके जो दोनों की वीट क्रॉप्स होता है. फॉर एग्जाम्पल वीट क्या है? वीट समर सीजन में उगता है. ठीक है, और हमारा जो पैडी क्रॉप है, पैडी क्रॉप, ये कब ग्रो करते हैं? रेनिंग सीजन में. तो इनकी वाटर नीड ज्यादा होती है, और जो समर सीजन में हम ग्रो करते हैं रबी क्रॉप्स जो होती है उनकी वाटर नीड ज्यादा नहीं होती है. ठीक है, तो अगर उनको हम रेनिंग सीजन में ग्रो कराएंगे तो अगर पानी ज्यादा होगा तो उससे क्या होगा?
उनके पौधे सड़ जाएंगे। लेकिन यहाँ पे रबी क्रॉप्स हैं, इनकी नीड ही ज्यादा होती है वाटर की, तो इनसे नहीं कुछ नहीं होता है। ठीक है, आप देख सकते हैं स्टार्टिंग से जब से ये ग्रो किया गया है तब से इनमें इतनी वाटर हमेशा ही रहा है, लेकिन इन प्लांट्स को से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये दिस इज द नीड ऑफ दिस रबी क्रॉप्स। Okay, so because of this reason you can see we have to remove the weed, and also there is a we can't grow the rabi crops during the kharif season, okay, because their temperature and water need both are different. Crop production and management, agricultural practices. When plants of the same kind are grown and cultivated at one place on a large scale, it is called as crop that we have discussed. Then, for example, crop of wheat means that all the plants grown in a field that are of wheat. ठीक है, जैसे हमने देखा कि अगर हम क्रॉप की बात कहें तो एक फील्ड में अगर एक ही जैसे सेम जितने भी वहां पर प्लांट्स है वो सेम है तो वो क्रॉप कहलाते हैं। यू ऑलरेडी नो दैट क्रॉप्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स लाइक सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स. दिस कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द सीजन इन विच दे ग्रो. India is a vast country. The climatic conditions like temperature, humidity and rainfall vary from one region to another region. So India एक vast country है. नॉर्थ साइड में आप चले जाए तो वहाँ का टेम्परेचर, क्लाइमेट अलग है और जो क्रॉपिंग है वो भी अलग होती है. देन मिडल में आ जाए मध्य प्रदेश, गुजरात, ठीक है, तो यहाँ पर यूपी, बिहार, तो यहाँ का अलग है. देन साउथ में चले जाएं तो वहाँ का टेम्परेचर ज्यादा है, नॉर्थ का कम है, मिडल का मीडियम है, और साउथ में चले जाएं तो वहाँ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है और रेनफॉल भी ज्यादा है. तो वहाँ ज्यादातर क्या करते हैं, नॉर्थ में ज्यादातर वीट उगाते हैं और साउथ में ज्यादातर राइस, ठीक है, पैडी. सो अकॉर्डिंग टू देयर क्लाइमेटिक कंडीशंस, अकॉर्डिंगली देयर इज अ रिच variety of crops grown in different parts of the country. Despite this diversity, two broad cropping patterns can be identified. These are kharif crops and rabi crops. Kharif crops जो रेनिंग सीजन में हम ग्रो करते हैं, that is kharif, from June to September. Clear है? For example, paddy, maize, soybean, groundnut, cotton, etc. are kharif crops. The crops are grown in the winter season are called rabi crops. The crops grown in the winter season are called rabi crops. Their time period is generally from October to March. Okay. So examples of rabi crops are wheat, gram, pea, mustard and linseeds. So these are the examples of rabi crops. Basic practices of crop production. So what are the basic productions? Cultivation of crops involves several activities undertaken by farmer over a period of time. You may find that these activities are similar to those carried out by a gardener or even by you when you grow ornamental plants in your house. These activities or tasks are referred to as agricultural practices. These activities are listed below. So जब भी हम कहीं अगर छोटे मोटे गार्डनिंग भी कर रहे होते हैं या प्लांट्स को गमलों में लगा रहे होते हैं तो भी कुछ चीजें हमें फॉलो करनी पड़ती हैं, ठीक है. तो सबसे फर्स्ट वन क्या आता है, ये सारे को क्या कहते हैं, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस. फील्ड के लिए भी हमें ये करना बहुत जरूरी होता है. फर्स्ट वन इज प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, ठीक है. तो हम किस तरीके का सॉइल डाल रहे हैं, किस प्लांट के लिए डाल रहे हैं, वो भी बहुत जरूरी होता है. यहाँ पे ये मतलब नहीं है, ये मैं गमलों की बात कर रही हूँ, ठीक है. तो यहाँ पर हम मिक्सचर डालते हैं, ठीक है, गमलों में. और खेतों में क्या किया जाता है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल का मतलब अभी हम यहाँ पे डिटेल में देखने वाले हैं. सोइंग, ठीक है. थर्ड वन इज एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, देन इरिगेशन, वाटर फैसिलिटी, देन प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वेट्स, ठीक है, यानी कि इंसेक्ट से बचाना, हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज. सो ऑल दिस आर एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, दैट इज स्टेप्स ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है, बेसिक स्टेप्स ऑफ एग्रीकल्चर. देन लेट अस सी द फर्स्ट वन, दैट इज प्रिपरेशन ऑफ सॉइल. द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग a crop. One of the most important tasks in agriculture is to turn the soil and loosen
8 सबसे पहला इम्पोर्टेंट टास्क क्या है कि जो सॉइल है खेतों की उनको क्या करना है, टर्न करना है। ठीक है, ठीक है। टर्न एंड लूज क्यों करना है? टर्न एंड लूज इसलिए करना है ताकि उसके अंदर एयर आ जाए। ठीक है, जो रूट्स होती हैं किसी भी प्लांट्स की, ट्रीज की, उनको भी किसकी जरूरत होती है? उनको भी जरूरत होती है ऑक्सीजन की। ठीक है, सो अगर हम उसे टर्न और लूज कर देते हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर, आजकल क्या क्या यूज कर रहे हैं? ट्रैक्टर यूज कर रहे थे। तो पहले प्लो यूज किया जाता था, लेकिन अब ट्रैक्टर के यूज से क्या करते हैं, उसे लूज किया जाता है। ठीक है, लूज करके टर्न किया जाता है, जिससे उसके अंदर ऑक्सीजन क्या हो जाता है, मिट्टी को अगर तोड़ा जाता है तो उसके अंदर ऑक्सीजन एडिशन हो जाता है, जो कि बहुत जरूरी होता है। दिस अलाउज द रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल। और लूज होने की वजह से जो छोटे छोटे जो क्रॉप्स उगते हैं वो उनकी जो जड़ें होती हैं बहुत आसानी से अंदर तक जा सकती हैं। द लूज सॉइल अलाउज द रूट टू ब्रीथ इजली इवन व्हेन दे गो डीप इनटू द सॉइल। व्हाई डज द लूजनिंग ऑफ सॉइल अलाउ द रूट्स टू ब्रीथ इजिली? तो ये कैसे ब्रीथिंग में हेल्प करते हैं? द लूजन सॉइल हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ द अर्थवर्म एंड माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द सॉइल। ठीक है, लूजनिंग करने पर कई सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, देन इंसेक्ट्स, अर्थवर्म्स, ये सब उसमें प्रेजेंट होते हैं, यानी कि उसमें जनरेट होते हैं, पैदा होते हैं। ठीक है, दिस ऑर्गेनिज्म आर फ्रेंड ऑफ द फार्मर सिंस दे फर्दर टर्न एंड लूजन्स द सॉइल एंड एड ह्यूमस टू इट। ठीक है, तो ये सारे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या करते हैं, मिट्टी को टर्न करते रहते हैं, जिसकी वजह से उसमें एडिशन होता रहता है ऑक्सीजन का, और साथ ही साथ अगर उनकी जब डेथ हो जाती है तो वो ह्यूमस भी ऐड करते हैं, खाद भी बनते हैं। बट वाई डज द सॉइल नीड टू बी टर्न एंड लूजन? क्या जरूरत है? ठीक है, you have learned in the previous classes that soil contains minerals, water, air and some living organism. In addition, dead plants and animals get decomposed by soil organisms. In this way, various nutrients held in the dead organisms are released back into the soil. These nutrients are again absorbed by the plants. ठीक है, तो ये लूजनिंग क्यों किया जाता है? जो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, डेड प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उनको लूज करने के वक्त क्या होते हैं, वो मिट्टी से मिल जाते हैं और अच्छी तरीके से खाद में कन्वर्ट हो जाते हैं। उनके अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स होता है वो अगेन मिट्टी में आता है और फिर से प्लांट्स के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। सो दिस आर द मेन रीजन। ऑक्सीजन के लिए ब्रीथिंग, ऑक्सीजन मिक्सअप हो जाता है। ठीक है, साथ ही साथ उनके जो रूट्स के लिए एकदम मिट्टी लूज हो जाती है, जिसकी वजह से वो आसानी से नीचे डीप तक जा सकती है, और साथ ही साथ यहाँ पे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं डेड प्लांट्स ऑर्गेनिजम्स के, वो अगेन बैक किस में चले जाते हैं, सॉइल में, एंड देन दे आर एब्जॉर्ब बाय द प्लांट रूट्स। Since only a few centimeters of the top layer of soil supports plant growth, turning and loosening of soil brings the nutrient-rich soil to the top so that plants can use the nutrients. ठीक है, टर्निंग और लूजनिंग क्या होती है? प्लांट्स हमेशा अपर सरफेस में ग्रो करते हैं। ठीक है, तो हमें जो अपर सरफेस होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? न्यूट्रिएंट से भरा होना चाहिए। ठीक है, तो जब लूज करते हैं तो ऊपर वाले जो सरफेस रहता है वो नीचे जाता है, नीचे का ऊपर आ जाता है, यानी कि जो नीचे जितने भी न्यूट्रिएंट्स थे वो ऊपर आ गए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये काम करता है। Thus, turning and loosening of soil is very important for cultivation of crops. The process of loosening and turning of soil is called as tilling or plowing. So इन्हें दो नाम से जाना जाता है, tilling और plowing. This is done by using a plow. पहले ये प्लो यूज किया जाता था, हल यूज किया जाता था। ठीक है, इसलिए क्या होता है, मिट्टी के अंदर जा रहा है, जैसे जैसे ये दोनों आगे बढ़ेंगे तो ये क्या होगा, मिट्टी को खोदते हुए आगे चला जाएगा। This is known as tilling or plowing. Plows are made of wood or iron. If the soil is very dry, it may need watering before plowing. कई जगह बहुत ज्यादा मिट्टी क्या होती है, सख्त होती है, हार्ड होती है, उसकी वजह से उन्हें पहले क्या किया जाता है, वाटरिंग किया जाता है, उसके बाद प्लोइंग किया जाता है। The plowed field may have pieces of soil called crumbs. तो कई बार बड़े बड़े जो पीसेस होते हैं उन्हें क्रम्स कहा जाता है, मिट्टी के बड़े बड़े पीसेस को। It is necessary to break this crumb with a plank. ठीक है, तो इनके पास एक प्लैंक भी होता है जिससे कि वो क्या करते हैं, उसे बड़े बड़े पीसेस को तोड़ते हैं। The plowed field may have big pieces of soil called crumbs. It is necessary to break these crumbs with a plank. The field is leveled for sowing as well as for irrigation purposes.
द लेवलिंग ऑफ सॉइल इज डन विद द हेल्प ऑफ लेवलर। लेवलर होता है जो बहुत सारे एक साथ रहते हैं ये, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, इनको सब लेबलिंग के लिए काम आते हैं, ठीक। देन the field is leveled for sowing as well as for irrigation purpose. The leveling of soil is done with the help of a leveler. Sometimes manure is added to the soil before tilling. कई बार यहाँ पे मैन्योर खाद वगैरह भी डाल दिया जाता है टिलिंग के पहले, ताकि वो अच्छे से उसमें मिक्स हो जाए। दिस हेल्प इन प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैन्योर विद द सॉइल। द सॉइल इज वाटर्ड बिफोर सोइंग, ठीक है। सो इन्हें पानी दिया जाता है सोइंग के पहले, यानी कि सीड के छिड़काव के पहले, सीड डालने के पहले।